working last 14 years as an educator to prepare so many students for competitive exam like IIT JEE, SET, board classes 10, 12, CBSE. So this channel help you all to prepare for competitive exam. I try my best from my side, and this channel today I start because since working last 14 years as an educator, I feel what the problem students facing in school. So hopefully I just try my best, and let's see. Today we take a topic of class 10. See, topic is arithmetic progression. This chapter is very important. This chapter play a very important role in class 11 as well as in competitive exam. So today we discuss the basic term of arithmetic progression. What is arithmetic progression? So first of all, what is the meaning of arithmetic? Arithmetic means simply we just take the numbers. So first of all, what is the meaning of sequence? Let's say we discuss about what is sequence. So what is sequence? When I say arrange things in sequence or arrangement of numbers, let's say if I arrange some numbers like 1, 2, 3, 4, 5, dash, 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 or A, D, F, G, dash, dash, dash. So arrangement of some numbers, any arrangement of things is called sequence. So now what is the difference between sequence and progression? This is very confusing. What is the difference between sequence and progression? So now what is the difference between sequence and progression? What is the difference between sequence and progression? That question comes in our mind when we start AP. Again, I am telling you this chapter arithmetic progression is very important in 10th, in 11th as well as in competitive exam. So what is the difference between sequence and progression? See, arrangement of things is called sequence. If I arrange some of the things, if students arrange in a line, if I see arrangement of car, arrangement of anything, so that is called sequence. But if we arrange the things by using or by applying some rule, so if we use some rule to arrange the object or things, it means if I arrange some of the numbers by applying some rule, so that sequence is converted into progression. It means when we arrange our numbers, अगर हम सिर्फ numbers को arrange करते हैं, तो वो sequence है. But if we use some rule, let's say if I arrange some numbers by applying some rule, let's check which rule is there. Suppose if I write 1, 4, 9, 16, dash, dash, dash. So when I say which rule are applied, so either you can simply just, I write the squares of natural number, like square of 1, 1, square of 2, 4, square of 3, 9. So I use some rule. If I take one more example, if I write 1, 8, then 27, and if I say, is it a progression? So first you check, is the numbers are arranged by applying some rule? Yes, definitely. अगर आप देखें तो ये तीनों ये जो numbers हैं, these are the cube of natural number like 1, 8, 27, and so on. It means the simple difference between sequence and progression. If you add some rule, if you add rule, then the sequence is converted into progression. Now there are basically 3 types of progression, but in our syllabus only one type is there in class 10, which is AP, arithmetic progression. The another type is geometric and harmonic progression, GP, But right now we focus about an AP. What is an arithmetic progression? So let's say the definition of AP की definition या AP की परिभाषा क्या होती है? आइए हम चेक करते हैं. What is an AP? So first of all, you understand about the term progression. की progression की बात करता हूँ तो एक ना एक rule आ गया होगा. So now what is that rule we discuss in this? So listen it very carefully. A progression is said to be AP. A progression is said to be AP. Is said to be AP if difference of a term from the previous term
previous term is always same. So बच्चों अगर हैंड राइटिंग से कोई इशू हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना. वैसे भी फर्स्ट वीडियो है, सो यू कैन कंप्रोमाइज बिकॉज माई हैंड राइटिंग इज नॉट सो मच गुड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको समझ आना चाहिए. ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं. या प्रोग्रेशन इज सेड टू बी ए बी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, इसको फोकस करो. डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम. मीन जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे किसी टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म से, और हर बार अगर वो डिफरेंस सेम है, इफ दिस डिफरेंस इज सेम एट एवरी टाइम, देन वी से दैट कि दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी. अगेन आई एम टेलिंग यू, अ प्रोग्रेशन इज सेड टू बी एपी इफ डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम. टर्म प्रीवियस, एक टर्म उसके पहले वाले. तो एक एग्जांपल देखते हैं यार कि एक मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, चेक करते हैं कि या एक प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, और आई होप आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी. सो प्लीज यू नोट इट डाउन थिंग, और आप पॉज करके फिर से चेक कर सकते हैं. तो एक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं. ठीक है, तो प्रोग्रेशन ये है कि आई राइट 5 10 15 20 dash dash dash. Now suppose CBSE asks the question कि check whether this sequence is an AP or not. तो यार चेक करने का तरीका क्या है? तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज सेम. तो इफ आई से कि 10 minus 5, if I find 10 minus 5, is it 5? If I find 15 minus 10, it is same as 5. It means difference of a term from the previous term is always same. It means जब भी आप ये डिफरेंस निकालेंगे हमेशा 5 आएगा. और अगर ऐसा किसी सीक्वेंस में हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस है ये AP है. इट मीन्स इफ CBSE asks the question कि check whether the given sequence is an AP or not, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये चेक कर लें. सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करें, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करें, और अगर आंसर सेम हो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज एन एपी. बट स्टूडेंट्स जनरली डू द मिस्टेक, वो क्या करते हैं, दे कंफ्यूज समटाइम्स, वो फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं. तो रिमेंबर वन थिंग, वी ऑलवेज फाइंड डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज इफ आई राइट 7 10 13 dash dash dash. Now if I say check whether it is an AP or not, check करो भाई AP है कि नहीं. तो second term minus first term means 10 minus 7 is 3, 13 minus 10 3. तो clear cut it is an AP. And how you write in your examination later we discuss in some of the questions. तो I hope आपको arithmetic नंबर के साथ खेलना या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स में कोई रूल लगाया, प्रोग्रेशन बना, और वो रूल ये रूल है मीन्स डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज सेम. तो दैट प्रोग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू एन एपी. सो आई होप आप सबको ये डेफिनेशन समझ आ रही है, और आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स एपी के दे सकते हैं. बट हमारा सबका नेम अलग अलग है, सबकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है. तो सिमिलरली कोई ना कोई एपी का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी. आई होप आपके साथ कॉपी पेन होगी और आप समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे. सो चेक करते हैं यार एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड इफ आई आस्क द क्वेश्चन टू यू ऑल, आई होप, आई थिंक आउट ऑफ 100 90% स्टूडेंट गिव्स द करेक्ट आंसर. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी इज a comma a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d. और यार ये प्रोसेस क्या चलती जानी है, तो हम लास्ट में कुछ लिख देते हैं. वो क्या लिखते हैं, ये a और n लिखते हैं. देखेंगे यार ये a n है क्या, है ना, देखते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. सो a plus d a plus 2d. सो दिस a आप चेक करो यार कि ये AP है या नहीं. तो डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, अगर मैं a plus d में से a माइनस करूँ तो यार d आ. चेक कर रहा हूँ मैं कि AP है या नहीं.
अब मैं a plus 2d से सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा a plus d, so my dear students a कट जाएगा और 2d minus d अगेन d, मतलब मैंने चेक कर लिया कि ये AP है, तो चेक कर लिया कि AP है। अब it is an AP, तो what does this a represent? ये a है क्या? तो let's say this a is first term, this a is first term, and what is this d? D is called common difference, common difference। तो इट मीन्स जब भी हम AP का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, A एंड D। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस A इज फर्स्ट टर्म, और ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है इसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। नाउ दिस A इज फर्स्ट टर्म, सो आई राइट दिस वन इज A1। कंफ्यूज मत हो यार, ये A1 का मतलब ये फर्स्ट टर्म, तो ये जो A के साथ सफिक्स में 1 लिखा है ये पोजीशन बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे A है। व्हाट इज A2? A plus D। What is A3? A plus 2D। देखते जाओ, मैं तो ये कॉपी कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A plus D, थर्ड टर्म A plus 2D, ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी। फोर्थ टर्म आएगी, आप बोलोगे सर A plus 3D। टेंथ टर्म आएगी, तो जब फोर्थ टर्म में 3D आ रहा है तो ऑब्वियस है टेंथ टर्म में होगा A plus 9। If I say what is 50th term, यार 50th term क्या होनी चाहिए, तो 10th term में 9 दिया है तो obvious है 50th term A plus 49D। तो it means ये जो मैं suffix में 1, 2, 3, 4, 5 या 10, 50 लिख रहा हूँ, these only define the position कि first position पे क्या है, second पे क्या है, third पे क्या है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी और हम एक लास्ट कहीं AN पे पहुँचेंगे। तो नाउ वी डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट, और आज की हमारी जो वीडियो है, टुडे आई ट्राई टू कवर द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन AP इज AN। तो इस AN के बारे में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अदर पार्ट ऑफ एन AP। सो अगेन आई रफ ऑल दीज थिंग्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज AN? लेट्स सी वी डिस्कस। And today all the question belongs to this AN। Confuse मत हो भाई, बहुत important topic है ये, nth term of AP। जो बच्चे 10th क्लास में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो चैप्टर 5 पढ़ते हैं तो बोर्ड क्लासेस के लिए AP में दो टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हम AN इस वीडियो में कवर करेंगे और एक होता है SN जो कि होता है सम। तो बेसिकली पूरी AP हमारी 10th क्लास की इन दोनों पे डील करेंगे। तो टुडे आई ट्राई टू कवर द बेसिक ऑफ AN एंड सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ AN। इन नेक्स्ट वीडियो वी कवर SN। सो लेट अस व्हाट इज द nth टर्म ऑफ AP डिस्कस करते हैं। nth टर्म क्या होती है AP की? सो फर्स्ट टर्म A आपने देखा अभी 50वीं टर्म बताई थी, A plus 49D। 100वीं टर्म भी बता सकते हो भाई क्या होगी, A plus 99। इसी तरीके से कोई AN है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इनसे डर नहीं लगता, लेकिन इस N से डर लगता है। यार जैसे ये 50 और 100 है वैसे ही वो कोई नेचुरल नंबर है, तो आप इसके बेसिस पे इसका आंसर दो। तो A प्लस तो सभी में कॉमन है तो डेफिनेटली A प्लस होगा। नाउ 100 था तो 99D, 50 था तो 49 है, मतलब इस नेचुरल नंबर से एक कम है। तो अगर इधर n है तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो मैं d के साथ लिखूंगा वो इससे एक कम होगा। इट मींस n minus 1 d। सो वेरी सिंपल एंड बेसिक फॉर्मूला ऑफ एन nth टर्म ऑफ AP इज a plus n minus 1 into d। तो AP का हमने बेसिक पढ़ा, ठीक है, हमने समझा कि सीक्वेंस क्या है, फिर हमने ये समझा है आपने, ठीक है, कि प्रोग्रेशन क्या है, फिर हमने ये सीखा कि वो प्रोग्रेशन AP कब बनता है, और फिर फाइनली हमने ये सीखा कि यार AP का जो nth टर्म है, पता नहीं इस nth टर्म से बच्चे क्यों डरते हैं यार, वो n देख के कंफ्यूज होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि कैसे आया A plus n minus 1 into d। तो ये है nth टर्म
हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और ये देखेंगे कि हम इस nth सम का यूज कैसे करें, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि इस फॉर्मूले में भाई कौन सी चीज किस चीज का रोल प्ले कर रही है। ए रोल प्ले करेगी फर्स्ट टर्म का, डी रोल प्ले करेगा कॉमन डिफरेंस का, एंड रोल प्ले करेगा कि कौन सी टर्म है, पोजीशन ऑफ अ टर्म या नंबर ऑफ टर्म। एंड बेसिकली ये एन तो पोजीशन है कि फर्स्ट टर्म है कि सेकंड टर्म है, सो दिस एन रिप्रेजेंट द पोजीशन। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बेस्ड होंगे हमारे nth टर्म पे। सो यू कैन टेक द क्वेश्चन। आई प्रेफर फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए मैं ये मानता हूँ कि NCERT इज वाइबल। इफ यू वांट टू गेट 80 आउट ऑफ 80, सो दिस NCERT प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। आप NCERT के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें, इवन इफ यू एबल टू सॉल्व द ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज। मुझे लगता है अगर एक बच्चे को NCERT बहुत अच्छे से आती है और फिर रह जाती है उसकी स्पीड टेस्ट और वो लास्ट में सैंपल पेपर करता है, तो आपका ये सपना है भाई कि पूरा हो। दिस इज फॉर कॉमन फॉर 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट। योर NCERT इज वाइबल। आपसे कोई कितना भी बोले कि RD शर्मा कर लो यार, RS कर लो, NCERT से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल दे आर रॉन्ग। इट्स माय पर्सनल 14 इयर्स एक्सपीरियंस। जो बच्चे बहुत करीब या 100 तक पहुंचे हैं, उन्होंने NCERT को भगवान माना। सो NCERT इज गीता और बाइबल, वॉट एवर यू फील, वो आपके लिए है। तो हम कुछ क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, तो मेरे पास अभी ये RS अग्रवाल है और इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। So I take questions from whatever the part is there, but first you solve NCERT। तो एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यार मैं बोलूँगा और जो काम की चीज़ होगी वो लिखूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन AP। मीन्स मैं एक प्रोग्रेशन लिखूँगा और आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे और आप चेक करना कि वो AP है या नहीं। चेक कैसे करना है तो बताया। तो एक सिंपल सा मैं प्रोग्रेशन ले रहा हूँ। Let's say this progression is 9, 15, 21 and 27 days। जैसे चेक करना है भाई कि ये AP है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म पिक्चर में दिख रही है 9, क्लियर कट। नाउ आई फाइंड D और आई फाइंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा। सो 15 minus 9 it's 6। Now I find third term minus second term। यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक टर्म का डिफरेंस निकाल रहा हूँ प्रीवियस टर्म से। तो 21 minus 15, ये भी यार 6 आ रहा है। अब अगर आप 27 minus 21 करोगे, ये भी 6 आएगा। तो डेफिनेटली हम पता चल गया है कि ये AP है। बट अगर CBSE ये क्वेश्चन पूछती है 2 मार्क का, यू कैन सिंपली राइट कि सिंस A2 minus A1 6, A3 minus A2 is 6, so therefore common difference is same, therefore it is an AP। खत्म यार, खत्म। आपने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया भाई, AP है ही। तो CBSE पूछे प्यार से तो आप भी प्यार से 2-3 स्टेप्स लिखेंगे और यू कैन राइट एट द लास्ट यस इट इज एन AP। एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं यार कि AP है या नहीं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। तो देखते हैं वो सेकंड जो पैटर्न है वो AP है या नहीं। तो आई टेक द सेकंड पैटर्न इज √2 √8 then √18 और √32 dash। पता नहीं है रूट देख के घबरा गए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जैसे रूट देखा कि सर पता नहीं कैसे करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ऑब्वियस है √2 है, इज √2। नाउ सेकंड टर्म इज √8। तो यार 8 के आप फैक्टर निकालो ना भाई। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ऑब्वियसली ये पेयर बन गया, ये बाहर आएगा। तो इट मींस √8 कैन बी रिटन एज, समझ गए हो गया क्या लिखा जाएगा, 2 √2। ये पेयर हो गया, ये बाहर आ जाएगा रूट के।
2 बचे। 18 को देखते हैं क्या होगा ये, 18 के फैक्टर निकालते हैं। सो 2 9 3 3 1 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, सो इट्स 3√2। 32 के फैक्टर निकालते हैं। सो 2 16 2 8 2 4 2 2 4 2 1 2, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इट मींस इट्स 4√2। तो यार मुझे लग रहा है आप समझ रहे होगे कि ये AP है नहीं। √2 2√2 3√2 4√2 5√2 6√2। इट मींस इफ आई फाइंड second term minus first term, so it's 2√2 minus √2, it means √2. If I find third term minus second term, क्या होगा भाई, 3√2 minus 2√2, 3√2 minus 2√2, it means it's √2. So again you write the same language is since common difference is same, common difference is same, therefore it is an AP. It means अगर आपको कोई भी AP चेक करने आए तो दिस इज द वे यू कैन चेक। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आंसर यस होगा, और अगर अलग अलग है सो यू कैन राइट द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द गिवन प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इज नॉट एन AP. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस इज वेरी सिंपल और basic question. Let's discuss some more question based on anthem. जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आप जरूर देखेंगे कि स्पेशली अगर वो वीडियो CBSE के लिए है तो ये मैं लिखा हर बार जरूर लिखूंगा, क्योंकि ये भी एक सपना है और इस सपने को अचीव करने का सिर्फ एक ही मौका है. For 10th and 12th you can achieve this dream. So I am taking one very simple question. The question is, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ यार, पहले मैं एक AP लिख रहा हूँ. What is an AP? क्या दी है क्वेश्चन में? एक AP दे रखी है 9 13 17. ऑलरेडी क्वेश्चन में AP है, आपको चेक नहीं करना है, इट इज एन AP. Now the question is find the 20th term. 20th term find out करना है. वेरी बेसिक क्वेश्चन. फाइंड द 20th term ऑफ एन AP. फटाफट A और D लिखो कॉपी पे. A और D क्या होगी? आई होप यू अंडरस्टैंड. A होगा हमारा 9, D होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं मैक्सिमम बच्चे अभी भी. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 9 4. तो यार A पता चल गया, D पता चल गया. अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. तो 20वीं टर्म पूछी है. 20वीं टर्म क्या होगी? ये n था, याद करो. 20वीं टर्म इससे कम तो A प्लस तो लिख दिया करो. 20 है तो 19 कर दो, खत्म. A और D की वैल्यू पुट कर दो. सो A इज 9 एंड D इज, D क्या भाई 4 है. तो इसको सॉल्व कर लो. कितना आएगा यार? कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं. 4 9 36, 6 कैरी 3 4 1 4 प्लस 3 76, 76 प्लस 9 85. आई होप समझ आ गया होगा आप सभी के लिए. सो 20th टर्म पूछी जाए, 30th टर्म पूछी जाए, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैटर्न. मैं कोशिश करूंगा कि सारे पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूं. सो व्हेनेवर यू सॉल्व योर टेक्स्ट बुक, योर NCERT, you can solve easily these type of questions. So I hope there is no doubt in this question. I hope you understand. और क्वेश्चन के बाद अगर यार मैं रफ कर रहा हूँ तो प्लीज आप उसको नोट कर दें. इस हेडिंग को भी मैं रफ कर देता हूँ. एंड दिस इज माय फर्स्ट YouTube video, and I just think I had started, I think to started my YouTube channel in 2019, but it's not maybe possible. तो बोलते हैं कि समय निकलता गया, and I think but in 2022 finally today I decided to upload my first video, or I choose this topic. So I also discuss my journey, how I started. I as an educator, I work as an educator,
कहाँ कहाँ मैंने पढ़ाया है, किन किन इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूँ, कितने बच्चे IIT JEE क्रैक कर चुके हैं, कितने बच्चे सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके अब्रॉड पहुँच चुके हैं, कितने बच्चों ने क्लेट क्वालिफाइड कर लिया है, कितने बच्चों का JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, कितने बच्चे एडवांस IIT एडवांस क्लियर करके कहीं जॉब कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं. Each and everything I will share with you, and what is that introduction video ये बहुत आराम से अपलोड होगी, बट अभी कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट कंटेंट की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ. तो एक दो क्वेश्चन और हैं जो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद इन नेक्स्ट पार्ट वी कवर AN also. So we complete this chapter maybe in 2 or 3 slot. So this is the first slot. And in 3 complete series I complete this chapter. So I take 1 or 2 more question. तो यार ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. इसमें पूछा है कि फाइंड दी 9th टर्म. पहले मैं एक AP लिख रहा हूँ. So AP is 3/4 comma 5/4 7/4 9/4. पिक्चर बहुत सिंपल है यार. 9th टर्म निकालनी है. 9th टर्म क्वेश्चन मार्क. तो पता करो यार फर्स्ट टर्म क्या होगी. A is 3/4. D कैसे निकालोगे. फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके हम D निकालेंगे. शायद यही करेंगे. फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म की भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म. अभी भी मैक्सिमम सोच रहे कि सर फर्स्ट टर्म में से सेकंड करो. गलत है. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. LCM मत लेना, सेम है. तो आप डायरेक्ट 4 लिखो. यू कैन सिंप्लीफाई -3 2 मतलब हाफ आ गया है. E की वैल्यू हाफ है. नाउ वी हैव टू फाइंड द 9th टर्म. क्या होगी 9th टर्म. A + 8D. सॉल्व कर दो यार इसको. A की वैल्यू क्या है. A is 3/4 plus 8D. D is half. ये हाफ है. 2 8 कैंसिल आउट कर दो भाई. 3/4 plus 4 LCM लेना पड़ेगा. LCM नहीं आता हो तो शॉर्टकट है. 4 × 1 कर दें 4 आएगा. 1 × 3 कर दें 3 आएगा. 4 × 4 कर दें 16 आएगा. 16 + 3 फाइनल आंसर 19/4. इट मीन्स अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. सो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चन. इन नेक्स्ट वीडियो वी कवर सम मोर क्वेश्चन ऑफ AN, एंड इन थर्ड वीडियो वी डिस्कस अबाउट SN. सो अंटिल you just take care of yourself and don't trouble your mata pita and your guru, because they are the most important pillar of your life. Take care. Goodbye.